feature of database, and we call by the .NET or by the Java. There are several reasons we want to go for implementing a transaction. Chalo, I have learned transaction in database, or I can make a transaction in database. But our subjective is not to be good only in database topic called function, procedure, trigger, cursor or joining, or even though views. My purpose is to go for calling by the front end. So far I have taught you function, how to make a function and how to call the function by SQL command in double quotes. I have taught in your batch how to call the procedure from the SQL command, even though all the types, the basic procedure, the input procedure, the output procedure, check your copy, and return procedure. True? So I have to balance both one. Now what is transaction? I write a query for one table, or I write a query for multiple tables. I write a query for single table, or I write a query for multiple tables. I don't think so I require a transaction. If I write a query for multiple tables, I can go with a joining. Or I want to maintain the primary key and foreign key concepts, cascade rule, or referential integrity, which can affect to multiple tables, I can go with a trigger. If I perform here, it can affect to multiple tables. If I drop a record from one table, it can do automatically in multiple tables. Go with a trigger. So you can have multiple books. You can get knowledge of function, knowledge of proc, knowledge of trigger, but you will have some problem with the transaction and cursor. And someone will say tomorrow, and that tomorrow never comes. The man who worked in development, he can go for explaining the bit of transaction. Now I'm sharing my experience CDAC days and CSC days, how you can use transaction and when to use a transaction and with the program. Well, I write a query. If one query, any query, if any query is partial interdependent to other queries, if any query is somehow somewhere partially interdependent to other queries, I want to go transaction. So what is if any one query or any query is partially interdependent to other queries? What does it mean? उसने कहा सर आपने उसको एक्सप्लेन करो, आपने क्या बोला? I said transaction means work done. Say yes or no. I don't want answer in between. Say yes or no. Okay? Srivastava, do one thing. You connect to bank, withdraw the 7,000 rupees. It's a one SQL query. How? Update table name, set minus, where account number this. Now after doing first query, you have got output as a 7,000. Correct? Now perform second query. Purchase XYZ item, and after purchasing 3 items, if you get any balance, return to me. If it is more than 7,000, ask to me. Getting? It means
One query, you connect to bank, get the money. Second query, you purchase 3 items. But unfortunately, if one query fails, I don't know reason. If one query fails, why do we go for second query? And how you can go for second query? Not possible. So please roll back the transaction. Please come back to house. Please come back to house. Because it's totally simple mathematics. If one operation gets performed, the resultant of that operation is input for other operation. Getting? If first operation is not producing a desirable output, it's called output. Why do you start the next operation? Because for the next operation it is the input of that output. It means these two queries somehow somewhere logically what? Interdependent. So transaction takes place. Transaction is needed to apply when you have several queries and they are isolated, not related, go with execute non-query. But if multiple queries are somehow somewhere correlated or related, so I don't want to go for performing the individual transaction. Fine. Because second transaction takes place, second query gets executed when the output is coming from the first query. If I don't get a 7,000, I can go for shopping and all there. Do you get a point? So you have to find out a situation where you can go for applying the transactions. They can feel uncomfortable with you if you try to give a example which knows everyone, bank, debit or credit. If you met a man who knows transactions better, he will always explain single drama. Transaction is to be happen when you want to go for debit or credit. Okay? So don't try to go for always explaining a single example of bank, money, debit, money, credit. Unfortunately, if you go for any example of MSDM, even though they starts with the banking transactions and all that, I am talking about the normal transactions called business logic. Normal transactions. There is a hope. I have students of 1,000 in my center. They are somehow, somewhere dependent on me. I know. They don't explain me. Some few guys and girls explain me by phone, by SMS, by Facebook, sir. I am here only for certain months. I want to get a job. So there is a dependency comes into picture right now. Right? So if you trust on me, if you trust on me, you want to get some output from me. True? And once you get output, that output is for you as a what? Input. So that once you get success at one point, it can reflect at multiple points. Am I right? So transaction is to be takes place, is to be happen when one query is somehow somewhere partially interdependent to other queries. So you have to have a certain example which you can convince. But don't try to get convinced by a single example called money, debit or credit or transfer or whatever you say, account transfer or something else. You take a simple example, how I can execute second query. How I can execute a second query when very first query is not producing the desirable result. Okay, so there is a hope from first query, and that hope will be multiplied, not divided. True? If you multiply,
you can always get a more and more output, right? But in this case, if any logic comes as a negative, it can roll back the entire transactions. Second example you have to do. The second example for having a transaction, there is one paper, fine, is having the informations, or you want to purchase some items. For that, I go to shop. I says there are 20 lists in this my paper, and if you have all the items, please give them. But after that, don't say I had given you Sandeep 19 out of 20. When you can go to other shop and you can purchase. No. Because my transaction needs 20 items. What is transaction puja? What is transaction havan? These are so important transaction. If you skip any parameter, it's not a benefit of doing a havan and leave at puja. Don't go for alternative. There is a medicine, I know better. There is a medicine. I know importance of medicine because I am from doctor's family. I mostly are members of doctor's family in my family. So I know, I have seen for last several years the receipt, transcript and transactions. If any patient goes to hospital to explain the issues or the problems, doctor says these are the valuable items in my prescription and go and purchase. He writes 4 names in that prescription, and the patient cannot accommodate, cannot manipulate. He has to purchase all the but 4 medicines. Then he can get immediately effect and all that. Am I right? Otherwise, the things goes what worst. So in such a certain case, I cannot tolerate to run certain queries and avoid to what? Avoid to not to run what? Certain queries. I want to run all the queries, or please return my what? Transcript. Did you get a point? So in certain case, uncle, I have to be transact, I have to be do better transactions. Otherwise, I can have alternative. But at this point, I cannot have an alternative because it is a medicine name, it is even the company name, you have to purchase right now. So what doctor has written on a paper, you need to go for that. But so there is a single word called treatment. But uncle, treatment needs 4 queries. So, am I right? There is a single word called cardio, treatment, and for the treatment you have got 4 queries. But if any query fails, it can roll back the entire project. I don't think so. It will have any beneficial, or it will not have any immediately effect to the patients if you don't go for taking a medicine all the time. Getting? So those who takes the medicine, as he has got a time, he has to take all the time. Otherwise, it can have a negative impulse. Am I right? So man. So I mean to say, transaction is needed when you have group of queries. When you have group of queries, no need of transaction maybe. When we have group of query, but they are related to what? Each other. अब ये दवाई 9 से 11 खाना, ठीक है? और 12 बजे थोड़ा कुछ खा पी लेना भाई, फिर ये दवाई खाना, ठीक है? और प्लीज ध्यान रखना, अगले 7 दिन तक दही नहीं खाएगा, कोई ठंडा सामान नहीं खोएगा, कोई हेवी चीज नहीं उठाएगा, प्लीज ध्यान रखना. अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है यार, नो बेनिफिट एट ऑल. हमने वर्ड पापा से बचपन से सुनते आया, अगर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. आप देख लो. इफ यू वांट टू गो फॉर the treatment with me, you have to rest under my observations. Am I right? Otherwise, sorry, our door is open for you. Okay. So all items on the prescriptions are valid and valuable, and you have to tick all them.
अगर एक छूट भी गया तो आप मेरे पास दोबारा आओ, मैं देखता हूँ उसका रीजन क्या है, तो मैं कोई और दवाई का नाम लिख दूँ, बट अपना दिमाग मत चलाना वहाँ पे जाके। ठीक है अंकल? तो ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देना है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन। 4 आदमी को अभी जाना है मुजफ्फरनगर। 4 person हैज टू गो मुजफ्फरनगर। Why do we do 4 times transaction? आप चारों को एक डब्बे में बंद कर दो, चारों को एक जगह बंद कर दो और सेंड टू मुजफ्फरनगर। चारों को बंद करने का मतलब क्या? एक बस के अंदर बंद कर दो। उससे क्या होगा अंकल? ये चारों पहुंचेंगे या कोई नहीं पहुंचे? क्यों? वो चारों बच्चे जो है एक ही फैमिली के, और मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होगा। मैं, मेरा वो बच्चा नहीं आया तो संदीप क्या बात है? मेरे अंकल नहीं आपने गलत किया। अब 4 मेरे घर के बच्चों को अब 4 बस के अंदर क्यों बैठाए? तो अगर ट्रांजैक्शन हम तब करेंगे जब किसी न किसी क्वेरी का डिपेंडेंसीज कहां पे? बोलो सेकेंड क्वेरी से। वो तो यार मेरा पूरा लॉजिक खराब हो गया, तो बोलता यार मेरी पूरी परिश्रम खराब हो गई यार। एक गलत स्टेप क्या चला लाइफ में, पूरा ट्रांजैक्शन बोलो क्या हो गया? रोल बैक हो गया। आप जो कभी काम करते हो ना, तो मेरे जो पता है मामा जी जो है वाइफ के, वो भी ये काम करते हैं, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं करते। उन्होंने बड़े प्रॉपर्टी जो रखे हैं उधर जाने खूब कर रखे। तो हमें याद है मेरे मदर इन्होंने बताया कि पता नहीं इन्होंने कोई 1983 में कोई ट्रांजैक्शन किया था, मतलब कोई इन्होंने गुड़गांव के मकान बेचे थे, 4-5 मकान इकट्ठे। उनको वहां से काफी लॉस हो गया था, मेजर लॉस हो गया था, और इनको रिकवर करने में काफी पैसे में नहीं, उनको उबारने में मतलब शॉक्ड हो गए थे। तो काफी समय लगा था इनको रिकवर करने। इनको मैंने कहा तुम बैंक में हो, तुम बैंक में ही रहो, इसे चक्रों में ना फंसो। मैं अपने काम को छोड़कर अंकल कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। क्यों? हर आदमी अपने काम में क्या होता है बोलो? उस्ताद होता है और पंडित होता है। अच्छे खासे बैंक के बंदे अल्लाह के सब कामों में। अभी मेरा स्टूडेंट आशीष अरोड़ा, तो मेरे को फोन किया, सर जी मैं NIT का PM बन चुका हूँ। उसका भाई आता चेतन पढ़ने, और सुबह भी आया था। अब नारायण सुने वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है बैठ के आज। मैंने ये काम शुरू कर दिया। कहा सर धोखा खा चुके हैं, पीछे मत बोलना आप। तो क्या धोखा खाया करे? मैं 7 साल USA में था, मेरे फेसबुक पे आशीष अरोड़ा। किस्मत खराब, TCS बंदे में से, TCS USA में था वो। छूट गई जॉब 2010 की बात, दिल्ली आया, 6 महीने बर्बाद करे, जॉब नहीं मिली। सर्वाइव करने के लिए ज्वाइन कर लिया रेड गैंग। वो तो फॉर्चुनेटली उसकी वाइफ पर्ल ग्रुप में है, नेहा अरोड़ा, क्रॉक प्लेस पे, बाराखंबा रोड पे, गोपाल दास के बिल्डिंग पे पर्ल ग्रुप चलती है वहाँ पे। वहाँ उसके अच्छे पोस्ट पे है। तो उसके जॉब से कुछ दिन तक ये अपने आप को मैनेज करता रहा। अब कहता है सर अब मुझे मैनेज नहीं हो पाता, आप मेरे को पर्सनल टाइम दो सर प्लीज। बहस तो यूं ही चलती रहेगी आपकी, शो नेवर एंड्स, हमारा राइट, पर मेरे को जल्दी एंड करो यार। तू चाहता क्या है? सर मेरे को पढ़ा दो यार प्लीज। तो मैंने थोड़ा, मेरा आदत है इग्नोर करने का, मैं चलो देख लेंगे। नालायक एक दिन करा क्या, मेरे को घर छोड़ने गया। मैंने कहा तुम्हें घर को छोड़ेगा करे, ये तो मेरा मकान है 100 मीटर पे। सर चलो अंदर। दिमाग लगाया पंजाबी वाला। घर गया और वाइफ के पास गया और मेरी मदर के पास, और शिकायत लेके बैठ गया। आंटी मैं सर को बोल रहा हूँ इतने दिन से, मेरे को पर्सनली पढ़ा दो, सर मना करते हैं। और सारे प्रॉब्लम लेके बैठ गया। सर उल्टे में घर में डांट सुन गया, डांट पे डांट। आज वो लड़का बोलता है सर अगर जॉब छूटेगी ना तो वो काम आएगा, बोलो पर प्रॉपर्टी डीलिंग काम आएगा।
कि अपने बूढ़े वक्त देखे हैं लाइफ। अगर एक कुछ दिन पहले फोन आएगा, सर एक डील करी 1.25 लाख कमा ली। अब बोलो, अब मेरे को छेड़ते थे। तो वर्स्ट केस देखा उस बंदे ने, ठीक है। पर भगवान ना करे कभी गलत ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लिया तो जो उसकी नौकरी भी चल रही है क्या वो खत्म भी हो जाएगी। ये सब चीज एक कैसीनो है। जो इस फील्ड में है वही करे तो बेटर। हम ट्रांजैक्शन करते हैं अपने फील्ड में, आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने फील्ड में, वहां से आएगा, उसको देंगे, उसको बुला रखा है शाम के लिए, am I right? उसको वहां से पेमेंट आएगा, शिट साला आया नहीं यार, क्या होगा, चल यार उस वाले पेमेंट से काम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अंकल लाइफ क्या बोलो, लॉजिकली क्या बोलो, लिंक्ड है। एक सिरा भी टूटेगा, सारा ट्रांजेक्शन बोलो क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ। ये आपको जो अच्छा एग्जांपल लगे आप उसमें से चूज कर, ठीक है। कंपेयर टू वो एग्जांपल नहीं, बैंक का नोट, अकाउंट ट्रांसफर और ड्रामा ट्रांसफर, वो हर को आता है। अब दिक्कत क्या है अंकल, अब आ गए एडिड ऑडिट में। एडिड ऑडिट बोलता मैं बाय डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं करता। मतलब पहला क्वेरी लिखी, सेकंड क्वेरी लिखी, थर्ड क्वेरी लिखी। एडिड ऑडिट बोलता मैं 3 क्वेरी लिखता हूं। देखो 3 क्वेरी, पहली क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, हो गई। सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, हो गई। थर्ड क्वेरी भी एग्जीक्यूट हुई, हो गई। मतलब एडिड ऑडिट बोलता इस 3 क्वेरी के सामने बीच में क्या रिलेशन हमें पता नहीं है। वो 3 क्वेरी को सेपरेट ट्रांजैक्शन लेके चलता है। अगर 3 क्वेरी के बीच में अंकल अगर कोई रिलेशन है, कोई डिपेंडेंसीज है, पहला इंसर्ट इनटू चलेगा जी, उसे नया रिकॉर्ड गया, उसके नाम को निकाल लूंगा, उसके पैसे को निकाल लूंगा, उसे सेकंड वाला काम करूंगा। अरे बोलो यार, जो बचेगा उसको घर में जाकर रख दूंगा कल के खर्चे के लिए। ये मेरी मन की बातें हैं, हम ऐसा काम करेंगे। बट दिक्कत क्या है अंकल, मेरी एडिड ऑडिट में 3 क्वेरी के बीच का क्या संबंध है ये नहीं जानता है। बोलो कौन बदतमीज, एडिड ऑडिट नेट। मैं जाता हूं कॉलेज डेमो देने के लिए, अकेले जाने का मन नहीं करता, किसी को साथ ले लेता हूं, चाहे विकास गुप्ता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दिलीप चौधरी एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का हो। पूछते ये कौन है, सीआरपी कॉलेज का बच्चा है या ये उस कॉलेज का बच्चा है। तो मैं कौन हूं उसको पता है, मेरे साथ कौन गया उसको पता नहीं है। तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है ये कौन है मेरे साथ, हु इज ही, ये मेरा स्टूडेंट है। 2 क्वेरी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें पता है। आप देखो ना, हम लोग गए थे उस दिन घूमने भटकल, इस गलत दिमाग में खाना बना के, तो उस रोड के ऊपर 2 कार चल रही है, ये नमूना की टकरा। उस रोड पे 2 कार चल रही है अंकल, 4 कार 3 कार चल रही थी, हाँ 3 कार। किसी को नहीं पता था इस दुनिया में कि 3 कार के बीच में क्या रिलेशन है। Am I right? तो एडिड ऑडिट से आप मल्टीपल क्वेरी पास करो, ठीक है। उस क्वेरी के बीच में क्या रिलेशन है ये नहीं पता, बोलो किसको, एडियो ऑडिट को। इसका मतलब अंकल क्या हुआ, पहली क्वेरी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, टॉपिक में क्या करूं। सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, थर्ड क्वेरी, चलो थर्ड छोड़ो, सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब देखना बदतमीजी, देखना बदतमीजी देखना डॉटेड का। पहली क्वेरी, यहां देखो जानवर, पहली क्वेरी चली, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी चला, उसने रिकॉर्ड को सेव कर दिया, चलो ठीक से, तो भूल जाओगे समीकरण हो। सेकंड क्वेरी चली, एरर आ गया। तो गधे, पहली क्वेरी क्यों चली,
उल्टा बोल लीजिए अंकल जी, पहली क्वेरी ना चली, अरे बंदर सेकंड क्वेरी क्यों चल गई? हमारा राइट, मेरा लॉजिक है अगर पहली क्वेरी चले तो सेकंड क्वेरी भी चले, अगर सेकंड क्वेरी चले तो पहली क्वेरी भी चले। अंकल होता क्या है, एसक्यूएल कमांड क्लास का थर्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ट्रांजैक्शन होता है। आपको मैंने दो सिखाया था, पहला क्वेरी, सेकंड कनेक्शन। कॉपी खोल के देखिए सब आदमी। और थर्ड होता है अंकल ट्रांजैक्शन। मतलब ये होता जब पहली क्वेरी से चली उसको अंदर उसने एग्जीक्यूट कर दिया, जाओ तुम जाओ तुम जाओ। सेकंड क्वेरी की बात आई, वो भी चला गया या नहीं गया। हम चाहते हैं दोनों क्वेरी एक ही बॉक्स में जाए। किसने बोलो जाए? एक ही बॉक्स में। ये सारा पूरा बॉक्स ही जाएगा, ये बॉक्स ना जाएगा। नहीं आया समझ में? लास्ट एग्जांपल, 4 आदमी गए साले मूवी देखने के लिए, कितना टिकट लगेगा? 4 लगेगा। उस गधे ने कहा 3 टिकट, मतलब क्या करेगा? है ना, एक तो क्या कहते हैं, खुद ही बैठ के देखेगा मूवी तो नहीं लेगा ना, नहीं, हाँ नहीं लेगा, नहीं लेगा, हाँ नहीं लेगा। यस सदा जी, मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, तुम लोग देखो, हम तुम लोग का वेट करते हैं। सदा जी लॉजिक लगा दी, तुम तीनों देखो, हम तुम लोग का वेट करते हैं। जब देख के आओगे बता देते तुम्हें क्या देखा। 200 रुपये बचाएंगे, जब मेरे आगे सरदार होते हैं ना कार में, तो भगवान ब्रेक ले लो धीरे, सरदार जी कब गाड़ी रोकते हैं, कब किसी बोलते भाई साहब। अब मेरी सोच में जरा सरदार की गाड़ी ठोकी है मेरी, आगे का सरदार है ना तो पूरा रन टाइम कॉल ही मार देगा, कब लेफ्ट ले लेगा, कब राइट ले लेगा, कब ब्रेक मार देगा, कोई नहीं जानता। वही हुआ, चला पहुंच गया, पता टॉल टॉप गिरा था, टॉप गिरा नमूना ये टॉल से वापस आया, टॉल से। सरदार के साथ जो रहेगा सब हम सही है, पूरा साबित गलत है। हाँ ये लोग सरदार के साथ थी, सरदार के साथ जो रहेगा साला दुनिया पूरा गलत है, साला मैं ही सही हूँ, सर को छोड़ूंगा नहीं। जो सरदार सोच सकता है वो कोई नहीं सोच सकता। अब तो समझ आ गया, 4 टिकट लेनी है। अब सुनो करे सर, यही नहीं, अब अगला क्वेश्चन तो सुनो। 4 टिकट लेनी है भाई साहब, 4 टिकट है सर, टिकट दे दी। एक नंबर 17, एक है 22, एक है 72, एक है 104। अब सरदार जी की आप सोचो, एक फैमिली के 4 बंदे फसल अलग अलग बैठे हुए। अब सरदार जी मान लो गया गर्लफ्रेंड सरदार जी सुसाइड कर लेगा, सरदार सोच के पागल हो जाएगा। 4 टिकट चाहिए, एक साथ चाहिए, हमारा राइट, एक साथ। ये एक काम करो, ऐसा नहीं है तो 2 का लॉजिकली पेयर दे दो यार, 2 इधर, अगला भी काम लो 2 उधर, इतना तो कम से कम कर दो। साहब ये भी नहीं है, मैं पैसे वापस नहीं लेना, ठीक है गया ट्रांजेक्शन। अब ऐसा समझे, अब सब लोग आ गया होगा, ऐसे नहीं आएगा गधों को। हेलो ये सर संदीप भैया, हाँ
ओके हाँ हाँ बेटे हाँ WCF का हाँ आपके एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस आप बेटे मेरे को कॉल करो मेरे क्लास में कॉल करो 1 घंटे के बाद ठीक है 1 घंटे के बाद सो वी हैव टू मेक अ लॉजिक how I can process the work fine so I want to process the work in organized way otherwise roll back the transaction तो अंकल दिक्कत ये है जिस बंदे ने .NET में काम करी और जावा में काम करी वो ट्रांजेक्शन उसको काफ़ी दिक्कत है क्यों उसको ये नहीं पता है कि हर क्वेरी के बीच में सेपरेट क्या बोलना चल रहे हैं ट्रांजेक्शन अब देखो सेपरेट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं हमने यहाँ से एक क्वेरी लिखी SQL कमांड CMD एक क्वेरी अंतर जो भी लिखी और SQL कमांड CMD 1 सेकेंड क्वेरी लिखी बेटे मुझे पता है इन दो क्वेरी के बीच में क्या बोलो क्या रिलेशन मुझे पता है बट एडमिन ऑडिट को पता नहीं है मतलब किसको पता नहीं है सी अदालत को पता नहीं है उस केस में क्या होगा इस वाले क्वेरी को सेपरेट एग्जीक्यूट करेगा अरे बोलो यार और इसकी जब बारी आएगी मान लो जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं मान लो ऐसी और इस क्वेरी की जब बारी आएगी मान लो मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई डेटाबेस में तो तभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट क्यों करा तुमको मैंने कहा था करे तुम सारा सामान देगा मेरे को समय आपको बोलना भूल गया बदतमीज अब बैठे हैं पंडित घर में सब पूरा झूला निकाल लिया फिर सामान करे मिसिंग है मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ बैठ के यहाँ पे ये तो मेरे को पूरा सामान देता दिमाग खराब कर रखा है तुमने तो बेटे ये दिक्कत आपको है कि दो क्वेरी के बीच में क्या संबंध है उसको नहीं पता ये लड़की गई थी रोमिता मैं इसको क्या मानता हूं आपको नहीं पता इसको कोई भी दिक्कत आती है मेरे पास चली जाती है ऑफिसर अरोड़ा अगर उसके घर में अंकल चिकन बनता है एक पीस भी बचती है तो 12-22 से देने मेरे घर पे आता है उससे मेरा क्या संबंध है आपको नहीं पता राइट और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं हम क्यों आपको एक्सप्लेन करें दो क्वेरी के बीच में क्या रिलेशन है आपको नहीं पता उस केस में क्या होगा सिर्फ दोनों क्वेरी क्या करेगा बोलो सेपरेट एग्जीक्यूट करेगा बट अगर बेटे सेपरेट एग्जीक्यूट करेगा तो कॉलिंग फिर आएगी एक काम करो इस क्वेरी को और इस क्वेरी को इस क्वेरी को इस क्वेरी को दो टिकट मत तो बदतमीज अगर 6 आदमी एक ट्रेन से जाएंगे तो कितने टिकट होंगे टिकट झगड़ रहे आपस में अरे भैया मेरे को तुम 6 बिल क्यों दे रहे हो यार अरे क्या हो गया तेरे को 6 बिल क्यों दे रहा है यार मैं अकेला तेरे दुकान पे 4 सामान लेने आया था चलो वो 4 बिल क्यों दे रहा है एक बिल दे देना बनाकर यार खत्म करो कहानी ठीक है तो बेटे ये दो क्वेरी सेपरेट हाँ ये आप देख लो श्रीवास्तव क्या दो क्वेरी के बीच में कोई रिलेशन है ये जान हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बोलो एक्सप्लेन नहीं करेंगे बेटे डोंट माइंड ये दोनों क्वेरी आपका बोलो क्या जाएगा सेपरेट जाएगा
2010 में मैं और एक अरोड़ा की टेम्पररी जॉब लगवा दी रेड गेन में, चलो घरे खर्च निकल जाए। तो उसके अंकल 62 में कंपनी है, उसने सुबह क्लास करी, उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने कहा सर आप कार प्लीज छोड़ देता हूँ, सर मुझे देर हो रही, मुझे प्लीज छोड़ दो, प्लीज सर छोड़ दो। अब बच्चा जाने वाला था, मैंने कहा सर छोड़ देता हूँ। मैं भी जल्दीबाजी में लाइसेंस लेना भूल गया, यूँ चल दिया यहाँ से, छूट गई बैग में। 12:22 के पास गई, गाड़ी पकड़ी गई, मतलब उसने कहा साइड करो, रेड क्रॉस कर गए थे हम। ये और टेंशन में आ गए, यार सर तो अब और लगता हम गए और गए हम। लेफ्ट करी गाड़ी, मैं बात कर रहा था उससे, तो ये बोलता है सर मैं जाऊं। मैंने तू जा यार, मैं देख लूंगा। वो सगा गधे ने कहा कि नहीं जाएगा ये। तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा ये कौन है और मैं कौन हूं। मैं इसको ड्रॉप करने आया हूं, तुम इसको जाने दो, am I right? तुम इसको जाने दो, तुम मुझसे बात करो बस। तो उसने 15-20 सेकंड को सोचे होंगे, आई डोंट नो। उसने कहा तुम जाओ, दोनों जाओ। तो मुझे वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ा कि दो क्वेरी के बीच में क्या रिलेशन है, am I right? अदरवाइज दोनों क्वेरी क्या जाएगा, बोलो सेपरेट जाएगा। अगर दोनों क्वेरी सेपरेट जाएगा तो काम कैसे पूरा होगा? क्यों? वो मेरे पे डिपेंडेंट है, उसको हम ड्रॉप करेंगे। ये बोलो क्या ट्रांजैक्शन है। अब देखिए इनका ये बनाते हैं लॉजिक इसको, फैन चला दो। अब सुनो अंकल, फैन बंद करना। फिर ट्रांजैक्शन कैनॉट बी हैपन, सुनो ठीक से, ट्रांजैक्शन कैनॉट बी हैपन विदाउट एक्सेप्शन आईडी। हमें क्या पता था आगे गधा पकड़ लेगा मेरे को, हम उस लाइसेंस मांगेगा और उससे बहस करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप जितना उससे बहस करोगे उतना आपको जान मारेगा। जिसको समझाया ऐसी ऐसी बात है, हम जल्दीबाजी में निकले। मैं कभी बहस नहीं करता किसी चीज़ के लिए, हम जल्दीबाजी में निकले, मेरी लाइसेंस छूट गई, इनको ड्रॉप करना है। उसने 15-20 सेकंड देखा, कहा जाओ। उससे बदतमीजी करते फिर और तंग करता। इसका मतलब अंकल ट्रांजैक्शन के दो अंजाम हैं, या संवर गए या बिगड़ गए। अगर संवर गए तो मजा आ गया, बिगड़ गए तो बिगड़ गए, रोल बैक ट्रांजैक्शन हो गया, लॉजिकल एरर आ गया। बोलो कौन आ गया? ट्रांजैक्शन का रोल बैक, ओ बाय गॉड, और ट्रांजैक्शन का कमिट, मजा आ गया। तो रोल बैक का मतलब क्या हो गया? लॉजिकल एरर। और कमिट का मतलब क्या? नो इश्यू। तो जब ये प्रोग्राम लिखेंगे ट्रांजैक्शन का, तो जावा में किसी भी गधे लैंग्वेज में आप प्रिपेयर करो। बच्चे आते हैं क्लास करने, जो बच्चे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, इनका क्या होगा हमें पता है, बट ज़्यादा बोलते नहीं है, किसी से बात भी नहीं करते। अपनी क्लास करो, जाओ। पर मुझे पता है तुमको लाइफ में कहाँ दिक्कत होगा। एक समय आएगा तुमको बोलना पड़ेगा तो पड़ेगा, राइट? और देखते सब तो कब तक सीख रहता है, राइट? अदरवाइज कुछ नहीं होना, बैठे रहो किसी कोने में जाकर। जहां भी जाओगे तुमको बोलना है तो बोलना। तो हाउ लॉन्ग यू कैन हाइड योरसेल्फ? वो ट्रांजैक्शन कर रहा है अंकल, बट वो डिपेंडेंसी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा। चलिए यहाँ सर तुम्हारा गोली देख लेंगे, हो जाएगा। वहां बेटे जाके अचानक पूछा, मिरेकल नहीं होने वाला। कि हर क्वेरी, हर क्वेश्चन एक दूसरे का बोलो क्या पूरक है। सर पहला क्वेश्चन डेलीगेट गधे ने पूछ दिया, अगला इवेंट कैसे बनाओगे, मतलब वो उस नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का बोलो क्या है, आउटपुट है। और कहीं फंस गए, पूरी इंटरव्यू से क्या हो गया, बोलो रोल बैक। एक्सेप्शन आ गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है अंकल, अब करके दिखाया आपको। ये प्रोग्राम लाइफ टाइम संभाल के रखिएगा, ठीक है? और कोई बकवास एग्जाम बना आपको नहीं देना है, बैंक का और डेबिट का कार्ड का। आप जो जानते हो अपने बारे में बताओ।
समझ लें, हमें इतना टिकट चाहिए, इतने बर्थ में टिकट चाहिए, तुम्हारे पास अवेलेबल है तो बोलो, नहीं तो लॉग बैक करो ट्रांजेक्शन। सेकेंड बेटे, एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर चार मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, रात के 11 बजे लेके आना है, मैं सिर्फ चारों लेकर आऊंगा। क्यों? अगला उसके बाद देना है, हमारा राइट, अगला उसके बाद देना है। और हर मेडिसिन का वो इफेक्ट पड़ना पड़ता है एक पेशेंट के ऊपर, ओवरऑल परफॉर्मेंस। हम चारों लेके रात में हैं, ये डॉक्टर को फोन करेंगे, सर 3 बजे क्या करूं? वो बोलेगा ले लो, तो नहीं तो चलो वापस। पॉइंट थर्ड, मेरी प्लान, मेरी मैनेजमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट। मेरी प्लानिंग मैनेजमेंट ये बोलती है, अगर मैं इस काम को टाइम पे करूंगा, अगला मुझे वो मिलेगा, अगला मुझे वो मिलेगा, तो मैं क्यों नहीं अपने काम को प्लानिंग मैनेजमेंट पे करूं? फिर अंकल बिल्कुल फ्रेश टेबल बनाते हैं, फ्रेश टेबल। ठीक है, मैं जाना बैठे रहा हूँ। अंकल मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ आपको इस वक्त कि हर क्वेरी का सेपरेट क्या बोलो ट्रांजैक्शन। हम चाहते हैं अगर मल्टीपल क्वेरी के बीच में कोई संबंध है, सारे क्वेरी कहाँ जाए बोलो, एक ही बॉक्स में। अगर घर में कोई शादी होनी है, अगर 4 कार्ड बांटने हैं, तो बदतमीज 4 कार्ड 4 बार नहीं जाएंगे, am I right? 4 कार्ड एक साथ जाएंगे, ये चारों गए, ये चारों नहीं गए। तो आपको अंकल एक लॉजिक आनी चाहिए, एक प्रोग्राम का फ्लो। और जब कंपनी में जाएंगे रियल बच्चे, तो इनको वहाँ पे ये काम करना है, ये काम करना है, इनके पास एक कोड होना चाहिए, बस लॉजिक को वहाँ क्या करना है बोलो, फिट कर देना है बस। ओके, और एक रिकॉर्ड डाल दो, पहले से एक रिकॉर्ड। मेरी जिद है श्रीवास्तव, हमें 101 नंबर चाहिए और 102 नंबर चाहिए। तुम दे सकते हो तो हाँ या ना बोलो, और साले घुमा फिरा के मत बोलो, तुम बोलो हाँ या ना दे सकते हो कि नहीं। क्यों? 101 पे खिड़की है हमारा राइट, विंडो साइड से, और 102 में क्या बोलो, टॉप पे साइड। वो 2 दे सकते हो, देना दे तो छोड़ दो, मुझे टिकट नहीं देना। दैट्स फॉर बेबी ट्रांजैक्शन। हो गया? चलो एक रिकॉर्ड एंट्री कर दो, इंसर्ट इनटू आइटम, और ये प्रोग्राम आपको बेटे किसी भी तरह का एग्जाम्पल फिट हो जाएगा। तो लॉजिक देखना, 101 आइटम का नंबर और उसका प्राइस, पेन दे दिया, उसकी जरूरत क्या, पेन था ना। हो गया अंकल? हो गया? अब मैं देखो, दिमाग देखो मेरा, लॉजिक देखो, बंद करा। मैंने उसको बोला भाई साहब आप मेरे को 101 देना और 102 देना, 101 देना और 102 देना। उस बदतमीज ने क्या करा, मेरे को 102 दे दिया, 102 दे दिया, और कहता है एक टिकट नहीं हो पाया, एक टिकट कहे तुम 2 टिकट दे दे। 101 पहले से टेबल में क्या था बोलो, अवेलेबल था,
आपको पता है मैं जो मांग रहा हूँ आपसे 101, वो आप मेरे को नहीं दे सकते। क्यों? ऑलरेडी क्या बोलो, इट इज देयर। वो कहता बस 102 ले लो और कोई एक और ले लो, 103 ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, या तो 101 दो या तो 100 प्लस 102 दो। मेरी जिद है, और जिद नहीं है, हमें सर्विस चाहिए। उसने कहा साहब 102 खाली है, साहब में कोई और ले लो। मैंने नहीं मना कर दिया। ये 101 102 साफ है, आमने सामने का व्हाटएवर जो भी है। नेक्स्ट सुनो, अगर मैं यहाँ पे आई सी इस वक्त अगर बेटा ट्रांजैक्शन नहीं लगाते तो बदतमीज 102 चला जाएगा, राइट? अगर ट्रांजैक्शन लगाते हैं दोनों जाएगा, दोनों नहीं ऐसा। तो हमने उसमें लॉजिक बना के दिया, तुमने यूज किया है, तुमने प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किया, हमने नहीं किया, ऐसे कोई चांस नहीं मिली करने की, पर लॉजिक पता है सर, फ्लो पता है। आप दो सिनेरियो हम करके दिखाते, बस आप सारे करोगे क्या? आप क्वेरी बदल दोगे, बोलो पहला होगा इंसर्ट, फिर सेकंड का बोलो अपडेट होगा। अरे बोलो यार, तो हम 2 बार क्या लिखना है? बोलो इंसर्ट लिखना है। अरे बोलो यार, हम 101 भी इंसर्ट कर रहे हैं, 102 भी कर रहे हैं। आप रियल में क्या करोगे? इंसर्ट या अपडेट या बोलो कौन? डिलीट। बेटे चलो फ्रेंड, बेटे चलो करें स्टार्ट यूजिंग बेटे। लिखना मत, मुझे याद नहीं प्लीज। हम चाहते हैं सब फंसे, मैं 20 वर्ष में आता हूँ, मुझे सीखना है। प्रोग्राम मत लिखना प्लीज, मैं क्योंकि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा। बोलो कौन? ट्रांजेक्शन। वैसे अपने प्रोग्राम लाखों बार कर चुका यार, एग्जीक्यूट ऑन क्वेरी यार, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। आप देखते चलो लास्ट स्टेज। आप ये देखो, ये 2 कमीने आपस में बिल्कुल क्या बोलो बात नहीं कर रहे हैं, पर आपको पता है कि दोनों के बीच में क्या बोलो लॉजिकल होना चाहिए। आप ये देख रहे हो आपके 2 एम्प्लॉई आपस में बात नहीं कर रहा है, बट आपको लाखों का लॉस हो रहा है, राइट? दोनों को निकालो यहां से, ये दोनों को ठीक करो। फिर ये करता क्या है? डॉटनेट इसको अलग ट्रीट करता है, इसको क्या बोलो अलग ट्रीट करता है, और आप चाहते हो दोनों का ट्रीटमेंट क्या हो? सेम। मतलब दोनों मिलकर काम नहीं करता है, साफ साफ बोलो, दोनों मिलकर काम नहीं करता है।
101 2 3 2 और 2 2 कुछ भी चलो मैं मान सकता, क्या दिक्कत है तेरे को? मैं क्यों कहा 2 2 3 2 2 2? सर चावल तो डाल दी दो मेरे को, दावल तो डाल दो, चावल को बाद में, असेंडिंग ऑर्डर, am I right? करेक्ट। अंकल हुआ क्या, ये दोनों क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होंगी, सेपरेटली होंगी। ये बदतमीज करेगा क्या, एडिट ऑर्डिनेट इस वाले क्वेरी को अंदर एग्जीक्यूट कर देगा, और जब इसकी बारी आएगी तो क्या कर देगा बोलो, एक्सेप्शन दे देगा। अरे बोलो यार मेरा काम तो नहीं हुआ ना। अगर हम लगाते हैं कल ट्रांजैक्शन, ये दोनों जाती, ये दोनों नहीं जाती। अब बस आपको करना क्या है, जब आप जॉब बच्चे करेंगे, बस बेटे बोलो बदलेगा क्या, ओनली बोलो क्या बदलेगा, क्वेरी बदलेगा। अरे बोलो यार लॉजिक वही रहेगा। चलो transactions are a group of database commands that execute as a package. मतलब इस हेलो बोलो। हाँ जाओ जाओ, तो मेरे को फोन करने वाले भेज लेगा यार, क्या दिक्कत है? नहीं चलो, जाना कहाँ है? मुझे क्या है, तू बात नहीं जाओ यार, फोन करवा रहे। ट्रांजैक्शंस आर ग्रुप ऑफ कमांड्स, डेटाबेस कमांड्स that execute as a package। अंकल मैं ये बोल रहा हूँ, एक मोहल्ले में 4 कार्ड जानी है, एक बनाओ पैकेट और 4 कार्ड कहाँ रखो उस पैकेट के अंदर। ये तो 4 हो जाएगी, ये तो किसी को नहीं जाएगा। अगर आप बाहर के बंदे को बुला रहे हो पार्टी में तो फिर सबको बुलाओ, ये फिर किसी को मत बुलाओ। तो using a transaction gives your application the ability to avoid logical error and all changes executed from within transaction। ये अंकल ये जो है ना, ये ड्रामा है, इन्वेंट्री फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये सब प्लीज नहीं बोलना है। एकदम लाइट एग्जाम्पल दो।
लाइट वेट एकदम। हमें वहाँ जाना था, वहाँ से ये काम परफॉर्म करना था, वहाँ से वहाँ जाना था, वहाँ से वहाँ पैसे निकालने थे, उसको देने थे। साला किस्मत खराब हुई, हम भूल गए आज बैंक बंद। साला बोलो काम क्या बोलो रोल बैक। जो सोचे थे कुछ नहीं हो पाया सुबह से। ये क्या एग्जाम्पल दिया है पता है? कोई ऑर्डर प्लेस हुआ, उसके इन्वेंट्री इतना है जी, मुझे नहीं पता चला इसका ड्रामा। हाँ आपको ज़्यादा पता होगा। उतना एक रीऑर्डर लिमिट होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी आपका होता है वही ड्रामा दे रखा है। अब इसको देखते हैं महान क्या बोलते हैं। दो महान थर्ड कोई नहीं पढ़ना है बालक, कोडिंग देखना ही नहीं है, कोडिंग से मतलब ही नहीं है, और कुछ मिल जाए। अब देखते हैं थर्ड क्या बोलते हैं। अरे यार उसमें शेख यहाँ पर रुक जाओ। सारा दिन ट्रांजेक्शन करते हैं। हाँ हाँ चाय पीने जाते हैं, अगर चाय के साथ ब्रेड खानी है तो खानी है। ब्रेड नहीं है तो हम वापस आ जाएंगे रोल बैक दूसरे के पास। बिल्कुल सही बात है, लेना है तो सारे जगह से लेना है। ये सारा दिन ट्रांजेक्शन ही होती है हमारे, इसी को ट्रांजेक्शन बोला है। एक साइड लेना, एक साइड देना। देखो प्रोग्राम नहीं देखना है क्या, ये नालायक देखो देखो दो क्वेरी देखो ढक्कन देखा नालायक ये बनाया देखो। दो ऑब्जेक्ट है और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं बोले एक ब्रेड और चाय दोनों लेनी Yes. है तो ठीक है, नहीं तो नहीं दूसरी दुकान पे रोल बैक। अब पुराने लोग डोंट माइंड, आपको नहीं बोल रहे, पुराने लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन लिखते हैं। नहीं करनी है तो नहीं करनी है, देखता हूँ कैसे नहीं करनी है। देखता हूँ नहीं कैसे करनी है। चल नहीं हो गया झगड़ा हो, बैठे रहो घर में, जो भी सलाह होगा तो भी नहीं होगा। चलो ठीक है, चलो शाम में बात करते हैं उनसे दोबारा। ठीक है, रिजल्ट है रिजल्ट। दो ऑब्जेक्ट बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया हुआ है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच। देखो डिपेंड, ये देखो ये क्या है ये। हाँ जी पढ़ लोगे खूब लग रहा है, दिख रहा है, पढ़ लिया तुम, हो गया रोल बैक। रोल बैक ही कवर। सर ये है पंकज द्विवेदी, ये बंदे पंकज द्विवेदी इज a great man. I haven't seen my life. समझ नहीं है बालक। और कुछ देखता हूँ, चिंता ना करो, उससे बच के कहाँ जाएगा।